Biology, Classification of Plants, lesson number 6, and topic Phanerogams. In last video, we have already studied the classification of kingdom Plantae. Sorry, kingdom Plantae is classified into two subgroups, and these groups are cryptogams and phanerogams. So cryptogams means the plants in which sex organs or reproductive organs or reproductive structures are hidden. They are not specified and we cannot see them with our naked eyes. And this cryptogams is divided into three different divisions. Which are they? First one is Halophyta. They are already studied. Bryophyta and Pteridophyta. These three divisions we have already studied in detail. So let us see the next group of plants, that is phanerogams. What do you mean by phanerogams? The plants having specialized structure for reproduction as well as they can produce seeds. Means जो phanerogam group में आते हैं plants, उनके पास स्पेशलाइज स्ट्रक्चर है रिप्रोडक्शन पर्पस के लिए एंड वो प्लांट्स सीड भी प्रोड्यूस कर सकते हैं. सो लेट अस सी phanerogams इन डिटेल्स. Phanerogams again divided into two divisions. Which are they? Division gymnosperm and division angiosperm. I have written here division 4. Why this number is given? Because already group cryptogam here three division. Halophyta, Bryophyta, Pteridophyta 3 and fourth one is gymnosperm of division plant. Fifth one is angiosperm. So let us see these two divisions in detail. First division is gymnosperms. Gymnos means naked. Gymnos means naked. What do you mean by the word? Sperms means seeds. So naked seeds. In gymnosperms, plants like cycas, pinus. See in your book, you can see structure of plant cycas here on page number 78. Single stemmed plant. Here seeds are arrived directly on the stem, which is having the tuft of leaves like on the top of the stem. So in gymnosperms naked seeds are present. Means there is no formation of fruits. यहाँ पे फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं है, सीड्स डायरेक्टली प्लांट को लगते हैं. मीन्स सीड्स आर नेकेड. कैरेक्टर नंबर 1, दिस प्लांट्स आर एवरग्रीन, पेरेनियल एंड वुडी. एवरग्रीन मीन्स कोई भी सीजन हो वहाँ पे उसके लीव्स गिरते नहीं है और हमेशा ये प्लांट ग्रीन होता है. Hence it is called as evergreen plant. Perennial. Pere means many, neal means साल, बहुत सालों तक ये प्लांट सेम प्लांट जिंदा होता है. वुडी, इसका स्टेम कैसा है? वुडी. स्टेम का स्ट्रक्चर वुडी है. नेक्स्ट है सिंगल स्टेम विदाउट ब्रांचेस. जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ किया था, यहाँ सिंगल स्टेम है, डायरेक्टली लीव्स यहाँ पे अराइज होते हैं. इसको यहाँ से ब्रांचेस नहीं होती है, कहीं से भी ब्रांचेस नहीं होती है. सो अनब्रांच्ड हैविंग सिंगल स्टेम. नेक्स्ट लीव्स फॉर्म अ क्राउन. लीव्स फॉर्म अ क्राउन ओवर द स्टेम. यहाँ पे ये जो स्टेम है, ये स्टेम के ऊपर लीव्स का एक क्राउन होता है, टफ्ट होता है, यहाँ पे गुच्छा होता है. नीचे ब्रांचेस नहीं है, इसलिए लीव्स भी प्रेजेंट नहीं होते हैं. जनरली ये स्ट्रक्चर है प्लांट का. एंड सीड्स विदाउट कवर एंड डू नॉट फॉर्म फ्रूट्स.
इनके जो सीड्स है वो विदाउट कवर है, डायरेक्टली सीड्स अराइव होते हैं प्लांट्स को एंड फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं है। एग्जाम्पल है साइकस, पाइनस, पाइसिया, मतलब आप लोगों ने क्रिसमस ट्री देखा होगा, फिर बाद में थुजा जिसको आप लोग बोलते हो ना विद्या, उसके अंदर भी आप वो डायरेक्टली कोन्स देख सकते हो प्लांट के ऊपर। यहाँ पे डायग्राम दी हुई है जिम्नोस्पर्म्स, पेज नंबर 78। जो साइकस का प्लांट है उसका कोन यहाँ पे दिखाया हुआ है, जो फ्लावर नहीं है इसमें ये कोन है। ऐसे मेल कोन्स एंड फीमेल कोन्स आते हैं प्लांट पे। मेल कोन्स में मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं, फीमेल कोन्स में फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं। इस टाइप से डायरेक्टली सीड्स इसमें तैयार होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट जिम्नोस्पर्मिक प्लांट. Let us see angiosperm. Angios means cover and sperma means seed. So seeds are covered because fruits are formed in this type of plants. Therefore, these plants are called as angiosperm because they have flower that bear reproductive organs. So यहाँ पे स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं फ्लावर के अंदर। आपने देखा होगा एंड्रोशियम, गाइनोशियम, कैलिक्स, करोला, ये सब वर्ड्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट में। इसका एग्जांपल है रोज, मैंगो, हिबिस्कस। हिबिस्कस फ्लावर को ऑब्जर्व किया तो वहाँ पे आपको 5 डिफरेंट वर्ड्स दिखते हैं बाहर से, जैसे कैलिक्स, ये ग्रीन कलर की ट्यूब कैलिक्स, ये कोरोला, कोरोना नहीं करोला, देन ये यहाँ पे स्टेमिनल ट्यूब, इसके ऊपर 5 पेंटामेरस स्टिग्मा, मतलब ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, एंड यहाँ पे आप येलो कलर के जिसको पोलन ग्रेन्स, किडनी शेप, रेनिफॉर्म, एंथर्स दिखते हैं, ये हो गए मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर आपने लास्ट ईयर प्रैक्टिकल में देखा था, हमने यहाँ इसको डिस्क्राइब किया था, तो आप वो आपकी मेमोरीज को रिकॉल करो और एक फ्लावर को ऑब्जर्व करो। टेक वन फ्लावर in your hand and observe different whorls of the flower. Okay, next, so these plants bearing all the whorls as well as the sex organs or reproductive organs. ये plants पूरे एंजियोस्पर्म में ग्रुप में आते हैं। ग्रुप एंजियोस्पर्म और डिवीजन एंजियोस्पर्म is again divided into 2 different types of group. Which are they? Dicotyledonous plant and monocotyledonous plant. Dicotyledonous, the word itself, di means 2, mono means 1. So dicotyledons means सीड के जो पार्ट है, सीड के 2 पार्ट होने वाले प्लांट। आप घर पे हर प्रकार की जो दाल खाते हो, मतलब एक सीड है, अगर सपोज आपने ग्राम मतलब चना आपके हाथ में लिया तो उसके 2 पार्ट्स होते हैं। उसके बाद में कोई भी बीन्स है, उसके 2 पार्ट्स होते हैं। यहाँ पे है मोनोकोटिलिडोनस प्लांट्स। मोनो मीन्स हैविंग 1 कोटिलिडॉन इन द सीड। एग्जाम्पल मेज, अगर आप मेज का दाना लेते हो तो उसके 2 इक्वल पार्ट्स नहीं होते हैं, वो सिंगल दाना। जैसे ज्वार के भी 2 पार्ट्स नहीं होते हैं। So ऐसे जो plants है having single cotyledon in their seeds are called as monocotyledonous and having 2 parts in their seeds are called as dicotyledonous plants. So इनके ये दोनों plants के अंदर क्या differences है यहाँ पे देखिए। First difference is about seeds. So in dicotyledonous plants there are 2 cotyledons in the seeds. And in monocotyledonous plant, 1 cotyledon in the seed. Suppose this is bean chickpea. तो ये जो seed है, seed is divided into 2 equal halves. 2 equal halves में seed का division होता है। ये मैंने पहले भी आपको बताया था, आप यहाँ पे ध्यान रख सकते हो। So ये हो गया dicotyledonous plant का seed एंड मेज का एग्जाम्पल भी मैंने उस दिन आपको बताया था।
सो ये हो गया मोनोकोटिलीडॉन्स प्लांट का सीड। नेक्स्ट डिफरेंस यहाँ पे रिगार्डिंग टू रूट्स, रूट्स आर वेल डेवलप्ड इन डाइकोटिलीडोनस प्लांट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप प्लांट लेते हो हिबिस्कस का, अगर आप प्लांट लेते हो मैंगो, नीम ट्री, या ऑल दिस ट्रीज आर डाइकोटिलीडोन इंक्लूडिंग इन द ग्रुप ऑफ डाइकोटिलीडोनस प्लांट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, हम रूट की तरफ जाते हैं, सपोज रूट कहाँ रहेगा, जमीन के नीचे। सो dicotyledonous plants have well developed root, that is tap root। अगर आप कोई भी प्लांट देखोगे डाइकोटी, तो ये टैप रूट यहाँ पे रहेगा और टैप रूट को यहाँ पे रूट हेयर्स रहेंगे, देखा होगा आपके यहाँ पे। फेनुग्रीक, मेथी, फेनुग्रीक, कोरिएंडर, ये छोटे छोटे हर्ब्स भी हैं, वो डाइकोटिलीडॉन्स है। आप उसको ऑब्जर्व करो, उनके पास ऐसा एक सिंगल टैप रूट होता है और छोटे छोटे रूट हेयर्स यहाँ पे अराइज होते हैं। ओके, एंड व्हाट इज द डिफरेंस इन मोनोकोटिलीडॉन्स प्लांट? देयर आर फाइब्रस रूट। व्हाट डू यू मीन बाय फाइब्रस रूट और एडवेंटिशियस रूट? मोनोकोटिलीडोनस प्लांट्स, फॉर एग्जाम्पल जवार, फॉर एग्जाम्पल शुगर केन। शुगर केन मतलब गन्ना, अगर आप गन्ना देखेंगे तो उसके नीचे आपको डायरेक्टली अराइज रूट्स दिखेंगे, टफ्ट ऐसा गुच्छा दिखेगा रूट्स का, मतलब सिंगल ऐसा टैप रूट यहाँ पे ग्रो नहीं हुआ है, यहाँ पे फाइबर्स के जैसे रूट्स होते हैं, मतलब मेनी रूट्स आर अराइव फ्रॉम द स्टेम, मतलब स्टेम से बहुत सारे रूट्स यहाँ पे अराइज होते हैं, तो इसको बोलते हैं टैप रूट, इसको बोलते हैं एडवेंटिशियस और फाइब्रस रूट। क्या बोलते हैं इसको? एडवेंटिशियस और फाइब्रस रूट, एंड ये हो गया टैप रूट। देन स्टेम, रिगार्डिंग टू स्टेम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डाइकोटिलीडॉन्स एंड मोनोकोटिलीडॉन्स? तो स्टेम ऑफ डाइकोटिलीडॉनस प्लांट इज हार्ड, वुडी, स्ट्रॉन्ग होता है, हार्ड होता है। कुछ हर्ब्स का स्टेम हर्बेशियस होता है, मतलब डाइकोटिलीडोनस प्लांट है, आप बोलोगे फेनुग्रीक वगैरह, उनके स्टेम जो है वो स्टेम तो हमको ग्रीन कलर के दिखते हैं, लेकिन ग्रीन कलर के हैं फिर भी वो स्ट्रांग होते हैं। लेकिन बनियन ट्री, मैंगो ट्री, उनका ट्री ट्रंक देखेंगे उड़ी, स्ट्रांग है, हार्ड है, हार्ड रहता है, स्ट्रांग रहता है। एंड यहाँ पे मोनोकोटिलीडोनस प्लांट में थोड़ा डिफरेंस है, यहाँ पे अलग अलग टाइप के स्टेम आपको देखने को मिलेगा। बाम्बू, बाम्बू इज इंक्लूडेड इन मोनोकोटिलीडोनस प्लांट। तो बाम्बू का जो स्टेम है इंटरनली हॉलो है, आपने बाम्बू देखा होगा, तो ये स्टेम में मतलब आपने फ्लूट देखी, फ्लूट बाम्बू की बनी हुई है, यहाँ पे पूरी हॉलो है, हॉलो है मतलब यहाँ से एयर पास हो सकती है। देन बनाना स्टेम, बनाना का जो प्लांट है, बनाना का जो प्लांट है, यहाँ पे आप लीव्स देखेंगे बनाना के, ये लीव्स है, और ये आपको जो दिखता है वो फॉल्स स्टेम है, ये लीव्स का एक्सटेंशन है, इसका स्टेम यहाँ पे होता है एंड इसको रूट्स अराइज होते हैं। ये जो है आपको दिखता है, इसको फॉल्स स्टेम और सूडो स्टेम बोलते हैं, फॉल्स स्टेम और सूडो स्टेम। नेक्स्ट अनियन का, अनियन का जो बल्ब आप देखते हो इसको बोलते हैं बल्ब, बल्ब ऑफ अनियन। अभी आपको लगता होगा इसके ऊपर जो अनियन में इधर लीव्स आते हैं, इसके बीच में एक फ्लावर बियरिंग स्ट्रक्चर आता है, यहाँ पे उसके फ्लावर्स होते हैं, तो आपको लगेगा ये स्टेम है, बट दिस इज नॉट स्टेम। अगेन यहाँ पे जो आपको बल्ब दिखता है, बल्ब, दिस इज ऑल्सो नॉट स्टेम, ये भी स्टेम नहीं है, ये क्या है? स्केली लीव्स का एडेप्टेशन है, मॉडिफिकेशन है, यहाँ पे उसका फूड जमा है। स्टेम कहाँ है एक्चुअली? ये डिस्क लाइक पोर्शन जो आपको दिखता है वो स्टेम है, और इतने ही पोर्शन में आप देखते होंगे कि रूट्स रहते हैं अनियन को। सो दिस डिस्क लाइक पोर्शन इज कॉल्ड एज द स्टेम। सो स्टेम ऑफ अनियन इज डिस्क लाइक। नेक्स्ट पार्ट है लीफ। हाउ डू we guess if we have any leaf?
So how do we guess that this leaf is of plant including in dicotyledonous or monocotyledons? So यहाँ पे अगर अपने पास ऐसा स्टेम है तो ये स्टेम को हम लीफ है तो हम इसको ऑब्जर्व करेंगे कोई भी लीफ को। तो यहाँ पे आपको जो वेनेशन है, वेनेशन मतलब अरेंजमेंट ऑफ वेन्स ऑन लीव्स इज कॉल्ड एज वेनेशन ऑफ दैट प्लांट और लीफ। तो ये जो वेनेशन है आपको यहाँ रेटिकुलम मतलब जालीदार मतलब जाली के जैसी, अगर ये लीफ हमने सुखाया तो इसमें आपको जाली दिखेंगी, नेट दिखेंगी। सो इसको बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलम मीन्स नेट। देन द वेनेशन of the leaf having included in monocotyledon plant is parallel। अगर आप केले का झाड़ या केले का पत्ता ऑब्जर्व करोगे तो इसमें आपको कैसे वेनेशन दिखती है? पैरेलल। यहाँ पे किसी भी टाइप का रेटिकुलम वगैरह नहीं है, कुछ नहीं है। अगर ये पत्ता टीयर हुआ या फट गया तो भी सीधा फटता है। ये पत्ते को हम अगर फाड़ने को गए तो ये आड़ा टेढ़ा फटता है। सो वेनेशन इज पैरेलल। यहाँ पे डाइकोटिलिडोनस प्लांट में वेनेशन रेटिकुलेट, मोनोकोटिलिडोनस प्लांट में वेनेशन पैरेलल। देन अबाउट फ्लावर्स हैव पेंटामेरस सिमेट्री और टेट्रामेरस सिमेट्री। मतलब यहाँ पे आपको जो फ्लावर के पेटल्स है, फ्लावर के अंदर जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स है, वो सब 4 या 5 या मल्टीपल्स ऑफ 4 और 5 ऐसे दिखेंगे। सो द सिमेट्री ऑफ दिस टाइप ऑफ फ्लावर्स और डाइकोटिलिडोनस फ्लावर इज कॉल्ड एज टेट्रामेरस और पेंटामेरस। एग्जाम्पल है हिबिस्कस। नेक्स्ट मोनोकोटिलिडोनस जो प्लांट है, ये प्लांट के जो वर्ल्स है वो आपको 3 या मल्टीपल्स ऑफ 3 ऐसे दिखेंगे। तो इसको बोलेंगे ट्राइमेरस सिमेट्री। ट्राई मीन्स 3, टेट्रा मीन्स 4, पेंटा मीन्स 5। सो डाइकोटिलिडोनस प्लांट के अंदर जो फ्लावर है उसकी सिमेट्री आपको ट्राइमेरस या पेंटामेरस, एंड द सिमेट्री इन monocotyledonous flower is trimerous because it is having 3 or multiples of 3, means flower is having different whorls in the flowers is having flowers with 3 parts or multiples of 3, so the symmetry is called as trimerous. This is all about the lesson. I think you have understand this lesson. So आपको आगे पढ़ना है लेसन को, इसके क्वेश्चन आंसर्स देखना है, आपको जो भी नहीं समझ में आया है पूछना है। ओके।